साहब में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोगों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है, काफ़ी सारे लोग आप में से नए हैं. इफ़ आई एम नॉट ऑडिबल प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने अच्छे तरीके से मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ अपनी लिमिटेड नॉलेज से. आई विल डू माई बेस्ट. माई नेम इज़ फहद अहमद सद्दी और आई एम assistant professor here at SEEKS in the AI and DS department, artificial intelligence and DS department. So the idea is that we'll be running a 5-day workshop, which includes a theory session as well as a practical session. Now this is being conducted in collaboration with ISIS co-chair of business and finance at SEEKS, NAST. So throughout this particular workshop, I'm going to introduce some concepts, and I will introduce the idea behind data science and how it can be utilized to basically improve or facilitate your business or your ideas in various domains as well. Now, I'll be joined by Naira and Aisha, who will be leading the practical sessions, and they'll be conducting it in computing lab. We'll be using two tools, Tableau and RapidMiner. So in the computers which are available in the computing lab, you'll get both of these tools installed, or at least available. Then you can install them. You can use these tools. They are a good starting point. They can help you in rapid prototyping and understanding how various things work, especially from a practical point of view. Okay, thank you very much, Naira and Aisha. All right. Before we begin, can I get a very quick introduction, a very short introduction, so I know where you come from and what you already know, and then that would help me identify, in what detail should this particular lecture be given in. I have seen your registrations, so I have some idea. There are lots of professors here as well, and some people from industry. But just to give me a quick idea about what kind of background knowledge do you have in terms of computer science, in terms of data science, or business, that would be great. Please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है और मैं मेडिकल साइंसेज से हूँ. तो मेरे लिए बिल्कुल टोटली न्यू फील्ड है, तो एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें क्या मैं सीख सकती हूँ, इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया. Great. Dr. Samanati from NPS, and I did my PhD in marketing. बहुत पसंद है मुझे डेटा साइंस. अच्छा, ठीक है. तो बैकग्राउंड में डबल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ. इक्वेशन मॉडलिंग और इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी ग्रिप है. इस पे स्विच करना चाहती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रेनिंग्स ले रही हूँ. बिल्कुल ठीक है. Assalamualaikum. My name is Kamila Ghazal. I'm a CS 4th semester और मैं स्टेट बैंक से हूँ, स्टडी लीव पे हूँ यहाँ. अच्छा, ठीक है. Great. My name is Hulan and I'm a computer science graduate, and right now I'm working in machine learning as an intern, and I want to switch to business analytics. Great. I'm Naira Yaqub. मैं डब्ल्यू के 6th semester से हूँ, जिसका basically background information है. ठीक है. सही. Starting point. Great. ठीक है. I will help you out. Zaim, and I am IT graduate from SEEKS. Basically, I've been your junior, 1 year junior. Okay. Back in 2009. Yeah, I know. So it's a long time. Yeah. And just eager to know the data science. Great. My name is Mohammed Rashid Javed. I'm EE student of 4th semester. I have basic knowledge of Tableau and data sciences. I have taken a few online courses, so I'm looking forward to learn more about it. Great. Hassan Fakhar, 6th semester software engineering, total beginner in data science. Okay. Assalamualaikum, Farooq Afzal, 6th semester software engineering. So I don't really like development that much, so I'm looking towards the BI. Okay. Okay. Zali, software engineering, 6th semester, and I like this field very much, so I want to explore it further. Great. Fun to be. I work in a private NGO in supply chain department. Okay. That's good. My name is Mohammed Osman, and I am second semester student in CS6, and I have learned a bit of Python, pandas, and so I liked it, so I want to explore it further.
second semester student in computer science. I also have introduction towards data science from online courses. My name is Shanam Tijawal. I'm a graduate from NBS and I'm looking forward to that. Okay. Javed Iqbal, background from computational finance, have a basic knowledge of data science, looking to enhance it, let's see. Okay. And another is from software engineering fourth semester. Basics आते हैं but want to explore more about it. ठीक हो गया. I'm Bushra Rahman from double fourth semester and I don't really have knowledge of data science but ठीक हो गया. मैं नाहिद अहमद fourth semester electrical engineering और machine learning, deep learning और data science में interest है. Great. Okay. So we have a mixed batch, so different backgrounds से लोग आए हुए हैं. This is going to be a bit challenging, but I will try my best कि इसको बेस्ट तरीके से जो है ना प्रेजेंट किया जा सके. To begin with, we first of all need to understand कि ये जो आइडिया है डेटा साइंस का, what is this, right? और डेटा साइंस के आइडिया को समझने के लिए जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये पता हो कि डेटा क्या चीज़ है. ठीक है. टिपिकली आपने सुना होगा, ठीक है, और आपने कई जगहों पे देखा होगा कि लोग डेटा की बातें करते हैं कि भाई there is some data, there is lots of data, या we need some data, something like that. But what is this data? Essentially जब हम डेटा की बात करते हैं तो we can summarize it. ठीक है. इसको बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम कह सकते हैं कि कोई भी फैक्ट हो, कोई स्टैटिस्टिक हो, कोई नंबर हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी डेटा. लेकिन एसेंशली डेटा जो है वो दो तरह का होता है. एक डेटा वो होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक डेटा वो होता है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके अलावा भी जब बात आती है कि डेटा को डिफाइन कैसे करना है कि व्हाट इज़ डेटा, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं. आई मीन डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. एट इट्स बेस हम दो तरीके यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए हम बता सकें कि हमारे लिए डेटा क्या है. पहली बात तो ये कि हमें ये देखना होगा कि डेटा का फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में डेटा जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो ऑब्जर्व्ड हो चाहे वो कैलकुलेटेड हो. ये जो डेटा की फॉर्म है ना, दिस डील्स विद के इन नेचर या वंस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड तो डेटा किस टाइप का होगा. अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा को या पर्टिकुलर कुछ नंबर्स हों आपके पास, न्यूमेरिक किस्म का आपके पास डाटा आ रहा हो, या आप किसी चीज़ को लेट्स से रिप्रेजेंट कर सकें इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो दैट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा, या ऐसा डेटा जिसकी क्वांटिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड वी हैव क्वालिटेटिव डेटा जो यूटिलाइज होता है in order to describe certain features, in order to describe certain aspects of some kind of a universal or natural entity. ये जो quantitative data है, further इसके अंदर मज़ीद जो divisions हैं, that includes discrete data and continuous data. Discrete data वो data होता है कि जिसके बीच में आपके पास gaps आ रहे हैं और आप उसको count कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त इस सेमिनार हॉल में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो यू कैन काउंट देम आउट. इफ आई आस्क यू कि इस सेमिनार हॉल में चेयर्स कितनी हैं, यू कैन काउंट इट. ये डिस्क्रीट डेटा है. इसके साथ इस एज अपोज टू डिस्क्रीट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसकी एक और फॉर्म होती है जो कि होता है कॉन्टिन्यूस डेटा. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे अपना टेम्परेचर बता दें, तो आप एक थर्मामीटर लगाएंगे. इफ यू हैव अ डिजिटल थर्मामीटर, इट कैन टेल यू कि अच्छा आपका टेम्परेचर जो है इस वक्त 98.6 है, राइट. लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ रोक नहीं रही कि कोई बंदा आए और आके कहे कि नहीं मेरा टेम्परेचर जो है ना वो 98.554444 समथिंग समथिंग है, राइट. ये कॉन्टिन्यूस डेटा है. ऐसा डेटा कि जिसके अंदर जो उसकी वैल्यूज़ है ना पर्टिकुलर, वो आप बिन्स में या वो आप स्पेसिफिकली काउंट ना कर सकते हो. अगर आपने काउंट करना हो कि पूरे पाकिस्तान में
ठीक है, या पूरी दुनिया में लोगों की सैलरीज कितनी कितनी हैं, मतलब this would take a lot of effort, yet you would not be able to come up with a small category of numbers जिसमें हर बंदा लाई करता हो, या if you want to calculate, ठीक है, इसी तरह से वेट हो गया लोगों का, इसी तरह से हमारे पास ये जो रेवेन्यूज हो गए, प्रॉफिट हो गए, ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस डाटा के होते हैं। फिर जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ये हमें बताता है इंफॉर्मेशन किसी यूनिवर्सल या किसी नेचुरल चीज़ के बारे, किसी एंटिटी के बारे में, या किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें कुछ उसके फीचर्स बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जेंडर की इंफॉर्मेशन रखनी है तो उसमें क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, राइट? जो जेंडर की इंफॉर्मेशन है वो है कैटेगोरिकल डाटा। या अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके पास जो है ना, जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ना, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं होती कि एक बंदे की एज क्या है, लेकिन आपके लिए ये ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है कि क्या जो भी आपके सामने बंदा है, इज़ ही अ चाइल्ड, अ बेबी, राइट, इज़ ही एन एडल्ट। ये कैटेगोरिकल डाटा है। यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस है ना, जो काउंटेबल या डिस्क्रीट डाटा और कैटेगोरिकल डाटा में है, कैटेगोरिकल डाटा के अंदर कैटेगरीज आपके पास पहले से डिफाइंड है और वैल्यूज उन्हीं के अंदर से हो सकती हैं। जो काउंटेबल डाटा है उसके अंदर यू कैन काउंट एंड डिटरमाइन कि आपकी कैटेगरीज क्या होंगी, ठीक है, बट जो आपकी एक्चुअल कैटेगरीज हैं या जो आपके काउंट्स हैं कि किधर तक काउंट पहुंच सकता है, वो पहले से डिटरमाइन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ जेंडर आपने पहले से डिफाइन किया होगा कि 2 जेंडर रखने, 3 जेंडर रखने, 4, जितने भी रखने। एज ग्रुप्स होते हैं, एज ग्रुप्स के अंदर आप डिफाइन कर देते हो कि अच्छा ये पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, ये सारा कैटेगोरिकल डाटा है। लेकिन जब इंडिविजुअल एजेस हम लेंगे, ठीक है, हर बंदे की, तो वो काउंटेबल डिस्क्रीट डाटा होगा। फिर हमारे पास आती है चीज़ विच इज़ नोन एज टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा वो डाटा होता है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिकी हो गया कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि अब जो बंदा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है, उसके लिए टेक्स्ट में मीन समथिंग एल्स। ये जितने आप नोट्स बनाते हैं ना, जितनी चीज़ें आप लिख रहे हैं, ठीक है, प्लेन इंग्लिश में, उर्दू में, जिस चीज़ में, ये जो आप चीज़ लिख रहे हैं ये टेक्सचुअल डाटा है। नाउ अब मैं जो भी बातें कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, इसमें से जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो यू मे नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग, बट यू मे रिकॉर्ड ओनली सम पॉइंट्स। या अगर आपने एक बुक पढ़ी और उसको आपने समराइज करना है, तो यू वोंट बी समराइजिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बुक, बट व्हाट यू वुड बी डूइंग इज टेकिंग टेक्सचुअल नोट्स ऑफ इट। तो वो जितनी आप स्ट्रिंग्स लिख रहे हैं, जितनी आप चीज़ें लिख रहे हैं, वो सारा का सारा है आपके पास टेक्सचुअल डाटा। और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लें और इसको टेक्स्ट की फॉर्म में ही ले आए कंप्लीटली, तो दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम समथिंग लाइक नैरेटिव डाटा। इसकी एक एक्सप्लेनेशन हमारे पास यहाँ से भी आती है कि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, राइट, तो सोशल मीडिया पे एक कमेंट्री होती है। अगर आप कभी ट्विटर पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो लोग जो अपनी पोस्ट कर रहे हैं वो एक सोशल मीडिया की कमेंट्री है। हर बंदा अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा है। हर बंदा जब पोस्ट करता जाता है तो वो अपना कुछ बयानिया फॉरवर्ड लेकर आ रहा है कि अच्छा हाँ, ये मैं बात करना चाहता हूँ, ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। जो मैं बातें करता हूँ वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो जब हम ये बातें हम रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, जो मैं आपको यहाँ पे एक वो कहानी सुना रहा हूँ, ये सारा का सारा हो जाएगा नैरेटिव डाटा। फिर हमारे पास आता है विजुअल डाटा। अब आजकल विजुअल डाटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी अर्से से पॉपुलर ही है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि जो विजुअल डाटा है ना, अब हमारे पास ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम तस्वीरें या वीडियोस के ऊपर प्रोसेसिंग करें और उनको यूटिलाइज करके कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। हम ये नहीं कर सकते कि हम बैठ के ना हर चीज़ रिकॉर्ड करते रहें। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बैठ के ये चेक करना हो कि गिलगित सिटी के अंदर कितनी गाड़ियाँ एंटर हुई हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो मेरे पास सिंपल से तरीके, या तो मैं एक बंदा बिठा दूँ जो हर गाड़ी एंटर होती है तो वो उसको रिकॉर्ड करता रहे, या मेरे पास ये तरीका है कि मैं एक कैमरा लगा दूँ, वो
कैमरा वीडियो बनाता जाए और मैं सिंपली उसके अंदर जो है ना कोई मैजिकल तरीका यूज़ करूं कि वो मुझे ये बता दे कि अच्छा अभी एक गाड़ी एंटर होगी, अभी एक गाड़ी एंटर होगी। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जो मेरे पास सबसे सेफेस्ट तरीका है इसको चेक करने का, या सबसे ट्रस्टवर्दी तरीका है, वो ये है कि मेरे पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम हो, कैमरे से वीडियो बन रही हो और वो एटलीस्ट 80-90% टाइम बिल्कुल करेक्ट बता रहा हूँ। बाद में अगर कोई मुझे मसला नज़र आए तो मैं वीडियो भी देख सकूँ। लेकिन जो मैंने बंदा बिठाया हुआ है, अगर उससे कोई गाड़ी निकल गई तो बस दैट्स इट, डन। तो वो जो विजुअल एलिमेंट है ना, उसके ऊपर अगर मैं प्रोसेसिंग करके उसको मैं अगर यूटिलाइज कर रहा हूँ, अगर मैं वो विजुअल चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तस्वीरें, वीडियो, हाउसएवर, दैट कम्स इनटू विजुअल डाटा। फिर एक ऑडियो डाटा है। अगेन अब जो मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक नरेशन आ रही है, इसके अंदर एक स्टोरी आ रही है, ठीक है, ये बात तो सही होगी कि इसके अंदर एक स्टोरी आ रही है जो कि नैरेटिव डाटा में जाती है। लेकिन बातें करते हुए मेरी एक पर्टिकुलर पिच है, ठीक है, बातें करते हुए जो ऑडियो आ रही है उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, कुछ किस जगहों पे ऊंची होगी, कुछ जगहों पे नीची होगी, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ऑडियो स्ट्रीम्स होंगी, ठीक है। काफ़ी सारे गाने वगैरह जब आप देखते हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रीम्स होती हैं। अगर आप उनको रिकॉर्ड कर लें तो उसके ज़रिए भी आप काफ़ी सारी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑडियो डाटा के अंदर हमने, मेरी पीएचडी कोरिया से है, तो साउथ कोरिया में हम ये चाहते थे कि हम ये एनालाइज करें कि जब एक बंदा बैठ के किसी भी एक सिस्टम के साथ, किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम या जो भी उसके पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के साथ, और अगर मैं एक बटन प्रेस करता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे लेजर पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड, लेजर पॉइंटर आ गया, लेकिन मैं बटन प्रेस करता हूँ, लेजर पॉइंटर नहीं आता, फिर मैं बटन प्रेस करता हूँ, लेजर पॉइंटर नहीं आता, राइट। इवेंचुअली क्या होगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, जो मेरा बोलने का तरीका है वो ऊंचा हो जाएगा, मुझे गुस्सा आएगा। तो इसको एनालाइज करने का क्या तरीका है? इसको एनालाइज करने के लिए आप अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों के ऊपर जा रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप वो गुस्सा मेरे उसके अंदर से, एक्सप्रेशंस के अंदर से नहीं निकाल सकते। लेकिन जो मेरे आवाज़ की पिच है, अगर वो बहुत इंक्रीज कर जाए तो आपको पता लग जाएगा कि भाई बंदा तो गुस्से में है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, तो मस्ट बी कि कोई ना कोई सिस्टम फेल हो गया। इस तरह से अगर आपने ये एनालाइज करना हो कि यार हमारे पास जो है ना वो गाड़ियाँ एंटर तो हो रही हैं गिलगित में, लेकिन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर जो है ना इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, जो नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रही हैं। यू नीड ऑडियो डाटा अगेन, तो आप कैमरे के साथ माइक्स भी अटैच करें। फिर एक चीज़ आती है हमारे पास विच इज़ नोन एज सिम्बॉलिक डाटा। ये जो सिम्बॉलिक डाटा होता है ना, दिस इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सो टू स्पीक रियल डाटा। अगर आप इसी में से किसी पर्टिकुलर डाटा को या जो भी आपके पास चीज़ आ रही है उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, तो इट विल बिकम सिंबॉलिक डाटा। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जो है ना वो होती थी पहले ज़माने में, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी, शॉर्ट हैंड्स यूज़ होते थे, राइट। अब तो लोग रिकॉर्ड करते हैं, पहले ज़माने में लोग शॉर्ट हैंड्स लिख लेते होते थे। तो जब भी आप कुछ बोल रहे हो, उन्होंने नोट्स बनाने, आई डोंट नो हाउ इट यूज्ड टू वर्क, लेकिन सम पीपल वर एक्सपर्ट इन राइटिंग डाउन दोज शॉर्ट हैंड्स ताकि वो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर सकें। वो सिंबॉलिक फॉर्म है उसकी। या आजकल हमारे पास होता है कि हम जो है ना वो जब हमें रिप्रेजेंट करनी होती हैं चीज़ें, हम इमोजीज के ज़रिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट। If you want to simply say that something is very funny, you'll just type in LOL. Right? Obviously, you are not, laughing out loud while looking at some content. But what you have done is created a representation of the emotion that you are feeling. Okay. So this is how data would exist in wild or in nature. Then we have another particular methodology of defining what does the data look like. एक तो वो हो गया ना कि नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। फिर एक डाटा की फॉर्म होती है कि जब हमने डाटा को एक्वायर कर लिया, जब हमने डाटा को कैप्चर कर लिया, अब वो डाटा किस फॉर्म में है। जब हम डाटा को कैप्चर कर लेते हैं, जब हमने डाटा को ऑब्जर्व कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, या हमने उसको हासिल कर लिया, फिर डाटा टिपिकली 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक जो है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा का मतलब ये है कि आपको
डेटा एक्वायर करने से पहले ये बात पता है कि कौन सा डेटा किस फॉर्म में होगा, उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसकी टाइप्स क्या होंगी, मतलब डेटा के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपने वो गूगल एक फॉर्म फिल किया होगा ना, ठीक है, इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करने के लिए, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि आपका नाम क्या है, CNIC नंबर क्या है वगैरह। उसके अगेंस्ट एक एक्सेल शीट जनरेट होती है। वो जो एक्सेल शीट जनरेट होती है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अच्छा नेम, CNIC वगैरह वगैरह सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये सारा स्ट्रक्चर डेटा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमने आपसे डेटा कलेक्ट करना है उसमें CNIC की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, उसमें नाम होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं कि वो पहले से एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, उस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें आप आगे डाटा एंटर करते हो और ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमने आपका डाटा एक्वायर कर लिया। फिर एक फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ये होती है कि हमें ये नहीं पता कि उसका स्कीमा क्या होगा, लेकिन हम एक्वायर करना चाहते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगर आपने देखा हो, जो आप लोगों ने अपने पास जो है ना इमेजेस वगैरह अपलोड किए हैं, राइट, जो अपनी पेमेंट्स वगैरह की, वी डिडंट नो कि आपकी पेमेंट के क्या पीछे स्ट्रक्चर होगा। सो हाउ कुड वी गैदर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन? वी सिंपली आस्क यू कि अच्छा एक इमेज अपलोड करो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, आपने चाहे अपने मोबाइल के जरिए किया, किसी ने किसी बैंक के अकाउंट के जरिए, जो भी आपने किया, लेकिन आपने एक इमेज अपलोड कर दी है। स्ट्रक्चर हमें पहले से पता नहीं था, ठीक है, लेकिन वो डाटा हमने जरूर एक्वायर करना, क्योंकि वंस वी हैव दैट डाटा, फिर उसको खोल के हम देख सकते हैं कि अच्छा ये अकाउंट से ये हुआ है वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास। इसी तरह से अगर मैं आपको अभी कहूँ कि यार ज़रा प्लीज़ अपने बारे में ना 10 लाइनें लिखते हैं, आई डोंट नो आप क्या लिखेंगे, मुझे नहीं पता कि कौन बंदा अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करना चाहता है, और इंटायरली लाइकली कि हर बंदा एक डिफरेंट फॉर्मेट यूज कर रहा हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हो, एंड इट इज ऑल्सो लाइकली कि हर बंदा बिल्कुल एक ही फॉर्मेट यूज कर रहा हो, एक ही तरीके से एक ही जैसी चीजें मुझे बता रहा हूं, राइट, क्योंकि मुझे वो पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या होगा डेटा का। तो जब मैं उसको एक्वायर करता हूं, आई मस्ट एक्वायर इट इन अ मैनर कि मैं वो कंप्लीट डाटा एक्वायर करूं। जो स्ट्रक्चर था ना उसमें तो मुझे पहले से पता था, तो मैंने आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे, लेकिन जब मुझे नहीं पता कि आपका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारा डाटा कैप्चर करूं और बाद में उसको एनालाइज करके देखूं कि उसके क्या फॉर्मेट्स हैं, क्या चीज़ें आई हैं और किस तरह से उसके ऊपर काम करना है। इनका दोनों के जो तरीके हैं ना, इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि मुझे पहले से पता है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो जो मैंने फॉर्म्स अपने बिल्ड करने हैं बड़े क्लियर हैं, ठीक है, जो मुझे जगह चाहिए उसको सेव करने के लिए, कोई हार्ड डिस्क पे मैंने सेव करना है, कहीं पे डाटा सेव करना है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है, सब क्लियर है मुझे। इसका नुकसान है, नुकसान इसका ये है कि जब आप वो डाटा एंटर करते हैं आप कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते। जब आप डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, अगर आपको एक टाइम पे अपना CNIC नंबर नहीं याद तो आप वो फिल नहीं कर सकते, वो आपको फॉर्म फिल ही नहीं करने देगा। अगर आपको जो है ना वो लेट से आपने डाटा इंसर्ट कर दिया, सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई थी, अब वो डाटा आपसे जब आएगा आगे, किसी कंप्यूटिंग सिस्टम ने, किसी सिस्टम ने उसको वेरीफाई करना है कि अच्छा इस बंदे ने अपना नाम भी दे दिया है, CNIC भी दे दिया है, तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसके केस में ऐसा नहीं होता। उसके केस में आपके पास जो भी डाटा आ रहा है आप उसको बस डंप कर देते हो, आप उसको सेव कर देते हो। एज ए रिजल्ट जो डाटा एक्विजिशन है या जो डाटा एक्वायर करने का टाइम है वो अनस्ट्रक्चर्ड में बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड डाटा। लेकिन इन दोनों को मिला के ना, इन दोनों को मिला के कि यार जो हमारे पास डाटा एक्विजिशन का टाइम हो वो भी अच्छा हो, और जो डाटा को प्रोसेस करने का टाइम है या डाटा को बेसिकली समझने का टाइम है वो भी ऑप्टिमाइज्ड हो, इन दोनों को मिला के हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है।
सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा ये कहता है कि आपको कंप्लीटली स्ट्रक्चर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाट यू कुड डिफाइन इज सम स्ट्रक्चर. सो जो आप अपनी सीवीज बिल्ड करते हैं ना, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है. सीवीज में आप बताते हैं ना कि अच्छा वर्क एक्सपीरियंस का एक सेक्शन डाल दिया, आपने बताया कि अच्छा पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन डाल दिया, एजुकेशन का एक सेक्शन डाल दिया, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है. अब जब मैंने आपकी सीवी जो है ना किसी भी एक ऑटोमेटेड सिस्टम ने पढ़नी है, मैंने पढ़नी है, और इफ आई एम कंसर्न विद कि अच्छा आपकी एजुकेशन कहाँ से है, तो आई नो कि मुझे एजुकेशन के सेक्शन में चला जाना चाहिए, राइट. अगर मुझे वर्क एक्सपीरियंस देखना है, मुझे पता है कि भाई मैंने वर्क एक्सपीरियंस के सेक्शन में चले जाना, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है. आप चीज़ें अपनी कन्वे कर सकते हो अपने लिहाज से, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स जो है उसके अंदर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा. तो जो हमारे पास डाटा एक्वायर करने के बाद की जो फॉर्म्स हैं वो या स्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड हो सकती हैं, या सेमी स्ट्रक्चर्ड. इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है, अब उसकी डेफिनेशन क्या है. इट्स सम काइंड ऑफ अ फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, समथिंग which exists in the wild in either qualitative form or quantitative form, and when acquired it can exist as structured data, unstructured data या semi structured data. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बिग डाटा का. ठीक है, ये जो बिग डाटा का कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या है, इसको बेस लाइन पे समझने के लिए ना, बिग डाटा इज योर डाटा, जो कि हमने भी डिस्क्राइब किया अपनी इस फॉर्म में, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इनॉर्मस होता है, राइट. लेकिन ये इनॉर्मस को ना हमें समझने की जरूरत है कि इनॉर्मस का मतलब क्या है. अब जब हम अपना डाटा डिफाइन कर रहे थे, तो हमने बताया कि अच्छा डाटा का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हो सकता है कि वो इस फॉर्म में जो है ना वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव फॉर्म में. जब आप अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाते हैं, जब आप अपने कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, वहाँ पे आप ये बताते हैं कि भाई मुझे किस किस्म का डाटा चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह. टिपिकली आपके ऑटोमेटेड सिस्टम्स या सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर काम करेंगे, या सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड के ऊपर, या सिर्फ सेमी स्ट्रक्चर्ड के ऊपर. जब हम ये सारा कंबाइन कर दें, मतलब आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा भी पढ़ा हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा हो, अनस्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा हो, तो फिर आपके पास बिग डाटा बन सकता है. अब बिग डाटा के साथ हमारे पास 5 V's एसोसिएटेड हैं. ये जो 5 V's है ना, ये डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर्टीज आपके बिग डाटा की, कि डाटा को बिग कब कहेंगे हम और नॉर्मल डाटा कब कहेंगे. तो बिग डाटा या आपका डाटा बिग डाटा तब बनता है, एक तो उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा. वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब ये है कि अब हम बात कर रहे हैं सेवरल जीबीज़ के ऊपर, 500 GB, 800 GB ऑफ डाटा, 1 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, इस तरह का बड़ा वॉल्यूम है. ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा. दूसरा, उस डाटा के अंदर वैरायटी हो. वैरायटी का मतलब ये है कि डाटा आपने डिफरेंट सोर्सेज से एक्वायर किया हुआ है. आपने डाटा एक्वायर किया है लेट्स से कैमरा से, आपने डाटा एक्वायर किया है माइक से, आपने डाटा एक्वायर किया है सम यूज़र इनपुट से, डिफरेंट सोर्सेज से आपने एक्वायर किया. ऑफ कोर्स हर डाटा का जो फॉर्मेट है, हर डाटा का जो मोडालिटी है वो डिफरेंट है. कुछ डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, सिग्नल्स की फॉर्म में हो सकता है, कुछ डाटा टेक्सचुअल फॉर्म में, कुछ नैरेटिव फॉर्म में, कुछ ऑडियो डाटा, तो डिफरेंट वैरायटी हो डाटा. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वेलोसिटी का. अब ये वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहता है कि जो हमारी डाटा एक्विजिशन हमने करनी है, जो हम डाटा एक्वायर कर रहे हैं, उसकी स्पीड हमारे कंट्रोल में ना हो. मतलब इसका ये है कि डाटा एक्वायर करते हुए अगर आपने कभी ये नोट किया हो कि जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, ठीक है, घर पे जाएं या फिर आप यहाँ पे इवन यूनिवर्सिटी में भी, अब तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अगर आपने कभी कोई सर्च करना हो, आपने देखा होगा कि कुछ टाइमिंग्स ऐसे होते हैं कि जब इंटरनेट स्लो हो जाता है, राइट. इंटरनेट बिल्कुल स्लो हो जाता है, आपके पास जो है ना वो वेबसाइट्स खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही होती हैं. स्पेशली जो आपके पास ये टाइम पीरियड होता है ना, ये शाम वाला टाइम पीरियड बिटवीन अबाउट 7 to 10, उसमें इंटरनेट काफ़ी स्लो हो जाता है, राइट. सुबह के टाइम अगर आप आएंगे, आके आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बैठें,
तो यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना वो इंटरनेट चल रहा होता है, लेकिन अगेन स्लो होता है। शाम के टाइम आप यूनिवर्सिटी में बैठे, इंटरनेट तेज होगा। सुबह के टाइम आप घर पे बैठे, इंटरनेट बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक पूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक बेसिकली हो ये रहा है कि जब बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इवेंचुअली जो हमारी बैकबोन जितनी भी नेटवर्क की है उसके ऊपर लोड पड़ जाता है और उसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेट स्लो हो जाता है, राइट। अब ये जो ओवरऑल इंटरनेट स्लो हो गया है, इससे क्या हुआ? आप जो वेबसाइट खोल रहे हो स्लो हो, आप जो डाटा इंसर्ट करना चाहते हो स्लो हो गया, आप जो डाटा एक्वायर करना चाहते हो वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एज अपोज टू अगर आप मॉर्निंग में करोगे, मे बी यूल गेट वेरी क्विक रिस्पॉन्सेज, वेलोसिटी डिफरेंट। फिर वेलोसिटी की का ही अगर आपने चेक करना हो, अगर आप एक स्मार्ट वॉच पहनते हो, स्मार्ट वॉच आपको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन दे सकती है कि आपने कितने स्टेप, आपका स्टेप काउंट किया है, ठीक है, आपका हार्ट रेट क्या है, और वो कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन देगी। अगर आप ये रिकॉर्ड करते जाओ तो आपके पास एक सोर्स आ गई जिससे आप कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन ले रहे हो। इसी के साथ साथ अगर आप एक पेशेंट को कहो कि यार आपने स्मार्ट वॉच पहननी है ताकि जो है ना वो कॉन्टिन्यूस डाटा रिकॉर्ड होता रहे, लेकिन आपने दिन में 3 दफ़ा बीपी भी करना है, अपना चेक करना है, वो जो दिन में 3 दफ़ा बीपी अपना चेक कर रहा है वो बर्स्टी टाइप ऑफ ट्रैफिक है। वो एक दफ़ा बीपी चेक करेगा किसी एक टाइम पे, डाटा चला गया, बस डन, खत्म। फिर जब तक अब वो सेकंड टाइम नहीं आता उसका बीपी नहीं आना। लेकिन स्मार्ट वॉच से कॉन्टिन्यूस डाटा आ रहा है, तो जो वेलोसिटी है टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम अ स्मार्ट वॉच and the velocity to transmit data from your BP device are different. If you record both of these, right, so your system would be able to basically connect to various other systems and collect their data at various speeds. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है वेरासिटी का। वेरासिटी का आई विल गो बैक टू द पॉइंट कि अगर मुझे ये चेक करना हो कि गिलगित शहर में गाड़ियाँ कौन सी जाती हैं और मैं एक बंदा बिठा दूँ, अब मैं कहूँगा भाई रिकॉर्ड करते जाओ। अब वो रिकॉर्ड करता गया, बीच में उसको भूख लगी, वो चला गया खाना खाने, वापस आया, फिर उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, चलता गया काम, चलता गया। डे एंड में मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा मुझे बताओ गाड़ियाँ कितनी गई हो, मुझे कहता है ये देखें सर ये गाड़ियाँ गई हैं। तब मुझे उसमें नजर आता है कि यार ये 1 से 2 के बीच में तो गाड़ियाँ ही नहीं गई। तो वो जो 1 से 2 के बीच में कोई गाड़ी ही नहीं गई, अब वो जो डाटा आ रहा है कलेक्ट तो हुआ है ना, 0 कार्स हैं। अब क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए? अगर मैं अपने डाटा के कुछ पोर्शंस पे ट्रस्ट कर सकता हूं और कुछ पोर्शंस पे बिल्कुल ट्रस्ट ना कर सकता हूं, ठीक है, तो ऐसा डाटा वुड फॉर्म बिग डाटा, ठीक है। तो जो बिग डाटा में डाटा आता है ना, उसके अंदर कुछ डाटा ऐसा होता है जिसकी कोई वेरासिटी नहीं होती, जिसके ऊपर कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है कि ये डाटा बिल्कुल ठीक है। जो नॉर्मल डाटा होता है उसमें जो भी डाटा एक्वायर हो रहा है उस पर हमेशा एक प्रूफ रहेगा कि भाई वो डाटा बिल्कुल सही हो रहा है। बिग डाटा में ऐसा नहीं होता। फाइनली हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू का। जितना हम ये काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये सारा का सारा काम पॉइंटलेस है अगर हम अपने डाटा के अंदर से वैल्यू ना निकाल सकें। और वैल्यू या वो इनसाइट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें पहले से ना पता हो। अगर हमें पहले से ये पता हो कि यार हमने जो है ना वो जो भी प्रॉफिट निकालने हैं वो हाई होने हैं, तो फिर हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हमें ये पता हो कि यार हमने डाटा रिकॉर्ड करना है ताकि हम उसके अंदर से ऐसी चीज़ें निकाल सकें जो कि हमारे बिजनेस को हेल्प करें, फिर हम उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर हम उसके अंदर से कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे और मेथोडोलॉजीज अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें पता लग सके कि डाटा के अंदर वो हिडन इनसाइट्स क्या हैं। ये 5 चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, उसके बाद हमारे पास आता है बिग डाटा। ये जो डाटा ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो बेसिक इस पूरी वर्कशॉप का एम भी है, ये यहाँ पे इसको समझने के लिए हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बिजनेसेस हैं वो डाटा की बेसिस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करें। इस वक्त हमारे पास आपने देखा होगा कि
खैर पाकिस्तान में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं, वहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इस बेसिस पे होती है कि बॉस का एक्सपीरियंस क्या है या किसी एक फाइनेंशियल विजिट का एक्सपीरियंस क्या है, उसने इससे पहले क्या चीज़ें देखी हुई, वो क्या चीज़ें जानता है और उसके पास किस किस्म के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अक्सर